Yeah, welcome back, students. Here's the question on screen. And this question is with respect to fixed and variable both. As I said in the last videos also, they never specify which variance you have to calculate. They just highlight that calculate the relevant variance. Okay? Yeah. So you see how we are supposed to identify it while doing material. I told you how to identify while doing labor, while doing sales variance. Okay? So see, your fixed overheads is given, your variable overheads is given. So just understand that this is a question based on, yeah. Relevant variance means you have to calculate fixed overheads variance and you have to calculate variable overheads variances. Budgeted means standards and these are my actuals. Okay. Yeah. Just have a quick look over it. Hours दिया हुआ है, standard hours 3000 hours, actual hours 3300 hours, output दिया हुआ है 3000 और आउटपुट एक्चुअल आउटपुट भी दिया है 30 to 500. ठीक है. नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो ये मेरे काम आएगा कैलेंडर डेज के लिए. तो स्टैंडर्ड डेज इज 25 एंड एक्चुअल डेज इज 26. ठीक है. या सो as I said, we will assume that obviously the time period is same, whether it is monthly or you can assume it to be yearly. Okay. तो मैं ये चीज के बारे में आपको बता रही थी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर की. स्टेप 1 में आपको जो भी रेलेवेंट चीजें स्टेप 2 के लिए चाहिए होती है वो हम कैलकुलेट करके रखते हैं. ठीक है. तो जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जब हमने थ्योरी किया था फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स का, तो हमें ये 3 चीजें चाहिए इन द फॉर्मूला. दैट वन इज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, और दूसरा है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, and the third is standard rate per day. So these three requirements we need because these terms are used in the formulas. Okay. So if you calculate and keep this in step 1, so in step 2 you just have to apply them, or else you can directly start with step 2 as your step 1, write down the formulas and accordingly जो required working note है वो आप उस formula के नीचे भी calculate करके रख सकते हो. You can go both the ways. Okay, but I would suggest you calculate and keep the 3 relevant standard working notes, that is standard rate per unit, standard rate per hour and standard rate per day. Okay, the formula is very simple. When I want to calculate standard rate per unit, so my formula will be standard fixed overheads divided by standard output. The numerator is not going to change. Okay. Next, I want standard rate per hour. So see, my numerator is not changing. It is standard fixed overheads divided by standard hours. Now I want to calculate standard rate per day. My numerator is not changing. I am dividing it with standard days. So only my denominator is changing, keeping in mind my calculations. Okay. Yeah. तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है 45,000 रुपीज, डिवाइड दिस विद 30,000 यूनिट्स. तो माय आंसर इज 1 रुपी 50 पैसा पर यूनिट स्टैंडर्ड रेट. नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो 45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 30,000 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स. तो कोइंसिडेंटली सेम आया आंसर, ₹1.5 ये भी आया पर ये पर आ रहा है. नेक्स्ट 45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 25 days, तो एक दिन का आता है 1800 रुपया. तो स्टैंडर्ड रेट पर डे इज 1800 रुपीज पर डे. ओके. या now let's start calculating our formulas. First one is fixed overheads cost variance. So my formula is fixed overheads recovery minus actual fixed overheads paid. Okay. एक minute students, I would like to use highlighters over here. Okay. I can't see much of my color options. Okay. I can use this. Yeah. Okay. Yeah. So first is fixed overheads recovery minus actual fixed overheads paid. Okay. So look into your question. Fixed overheads कितना है आपका fixed overheads paid? Actual fixed overheads paid कितना है? 50,000. ये रहा. ठीक है. रिकवरी कैसे मिलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी ये रहा.
ये जो मेरा आउटपुट है ना 32,500, यही मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है। ओके, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 32,500। 32,500 मल्टीप्लाइड विथ, अभी हमें आंसर मिला था स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का ₹1.5 इंटू 1.5, तो माई आंसर इज 48,750 माइनस 50,000। ठीक है, तो 1250। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अगेन for this chapter, again I mean for this part especially, कैल्सी का आंसर मत देखना, इसको भी लॉजिक से सोचो। तो कैल्सी पे जो आंसर है 1250 माइनस आया प्लस आया, उसके हिसाब से आप साइन मत डालो सेल्स वेरिएंस के जैसा। ओके, लॉजिकली सोचो। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? टाइम पीरियड से। ठीक है, तो आपने सोचा था 1 महीने का आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना होगा 48,750, बट आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना हुआ है 1 महीने का? हाउ मच यू हैव टू पे 50, तो आपको ज्यादा भरना पड़ा ना, सो इट्स एन एडवर्स वेरिएंस। Okay, so 1250K. Please think logically. ठीक है, come to the next one. Second one, fixed overheads, expenditure variance. So standard fixed overheads 45,000 minus actual fixed overheads 50,000. So 5,000 A. Again, I am telling you students, don't look into the calci answers. Think logically, क्योंकि आप time period से compare कर रहे हो। 1 महीने का आपने सोचा था 45,000 होगा फिक्स कॉस्ट, बट फिक्स कॉस्ट आपको देना पड़ा 50,000, तो ये एडवर्स हो गया। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ठीक है, या तो हाउ मच इज माय क्वांटिटी 30,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 30,000 माइनस 32,500 इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना था मेरा ₹1.5 एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, तो 3750। अभी देखो कैल्सी क्या दिखा रहा है नेगेटिव, बट आई विल टेल यू टू थिंक लॉजिकली। ओके, जरा लॉजिकली सोचो आप। 1 महीने में आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना था 30,000, और आपने कितना प्रोड्यूस किया 32,500, बराबर। ये देखो करेक्ट ना? हाँ, तो आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया ना, तो अच्छी बात है ना, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो यस, अंडरस्टूड। या तो स्टैंडर्ड आउटपुट और ये रहा मेरा एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट ज्यादा है, अच्छी बात है, राइट? So it is a favorable variance. That's the reason I said don't look into the calci का sign, think logically and accordingly put your sign. क्योंकि देखो सेल्स वेरिएंस भी जो है वो टाइम पीरियड से कंपेयर होता है और फिक्स्ड भी टाइम पीरियड से कंपेयर होता है, इसलिए दोनों जब वेरिएंसेस को आप एफ या ए का साइन देते हो तो बहुत ध्यान से पहले सोचो एफ या ए क्या आएगा। डोंट लुक इनटू व्हाट कैल्सी इज शोइंग द आंसर। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन। ठीक है, देन कम्स फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस, तो मेरा कैलेंडर वेरिएंस कितना है 25 डेज माइनस 26 डेज इनटू 1,800 रुपीज पर डे, तो मेरा आंसर है 1,800। कैल्सी मुझे बता रहा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, बट ये आंसर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 25 दिन काम करने वाले थे, आपने 26 दिन काम किया, अच्छी बात है ना, करेक्ट, बराबर ना? 25 दिन आप काम करने वाले थे, आपने 26 दिन काम किया, एक दिन ज्यादा काम किया, गुड कैलेंडर वेरिएंस। ओके, इट्स गुड ना, राइट? सो इट्स फेवरेबल। नेक्स्ट कम्स टू कैपेसिटी। ओके, ओके, या फर्स्ट लेट मी डिस्कस द इजीएस्ट वन। ये जो आपका आइडल टाइम है ना, ये इस सम में तो दिया ही नहीं है आपको, आइडल आज नहीं दिया है, तो ये वाला वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस। या it's easy, it's just that yeah, you have to think logically while allocating the sign. Okay, yeah. अब अपने को क्या निकालना है? या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, जब मैं कैपेसिटी निकाल रही हूँ मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल डेज के साथ कंपेयर कर रही हूँ, बराबर। ओके, अब इसको कंपेयर करने का एक तरीका है ना, दिस इज द वे आउट। ओके, दिस इज द इजी वे स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट। ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे जो वर्किंग नोट करके दिखाया है ना, इसको आप अलग से एक वर्किंग नोट कैलकुलेट करो, और ये आप पहले से नहीं कर सकते। या वेन जब आप वो फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे ना, तभी वो वर्किंग नोट भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है, हाँ, स्टैंडर्ड डेज इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, तो 25 दिन काम किया तो कितने घंटा हुआ
30 घंटा। तो अगर मैं एक दिन काम करूंगी तो कितना घंटा होगा, बराबर 30,000 डिवाइड बाई 25 कितना हुआ 1200। तो एक दिन हम 1200 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। या आ गया मेरा आंसर 1200। अब मुझे मेरा आंसर चाहिए आवर्स और डेज में, क्योंकि मुझे निकालनी है कैपेसिटी, स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज, बराबर। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, या मेरा आंसर अभी आया, राइट, एक दिन का 1200 घंटा। तो अगर मैंने 26 दिन काम किया एक्चुअली, तो मेरे को कितना घंटा काम करना पड़ेगा, into 26, 31,200 is my answer. Okay, I hope this part is clear to everyone, huh? So yeah, these are the base logical calculations that you have to remember and the ways out to it. ठीक है, तो 31,200 minus 33,000, yeah, minus 33,000 multiplied with standard rate per hour, जो कि कितना है, ₹1.5 वर्किंग नोट नंबर 1 में, तो 2,700। कैल्सी बता रहा है माइनस, बट ये है पॉजिटिव वेरिएंस। क्यों है ये पॉजिटिव वेरिएंस, इसके पीछे रीजन है। ओके, ये पॉजिटिव वेरिएंस इसलिए है क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब आपको कितने घंटे काम करना, 26 दिन में कितने घंटे काम करना था, 31,200, बट आपने कितने घंटे काम किया, 33,000 आवर्स काम किया, तो कैपेसिटी ज्यादा है। अभी अगर मैं किसी को बोलूँ, कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ना चाहिए, बट अगर मैं बोलूँ भाई तू अपनी कैपेसिटी बढ़ा, 8 घंटे की जगह 12 घंटा पढ़, और वो और 4 घंटे डाल के 12 घंटा पढ़ रहा है, तो आई विल से ना उसका कैपेसिटी बढ़ गया, उसका कैपेसिटी अच्छा है, 8 की जगह 12 घंटा इन्वेस्ट किया। सिमिलरली 31,200 की जगह पे 33,000 आवर्स इन्वेस्ट किया, गुड, तो फेवरेबल variance. Okay, now come to efficiency. When I'm talking about efficiency, I'll compare with output. ठीक है, या आई विल स्ट्रेटली कंपेयर विद आउटपुट। ये पहले ये निकालेंगे हम, जैसे इधर हमने पहले ये निकाला था, ठीक है, या स्ट्रेटली कंपेयर विद आउटपुट। तो 30,000 आवर्स के सामने मैंने 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो 1 घंटा, राइट, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा, बराबर। तो अगर मुझे 32,500 यूनिट्स बनाना है, आउटपुट बनाना है, तो मुझे कितने घंटे लगेंगे, 32,500 ही घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 32,500 माइनस 33,000 इंटू 1.5, 750 एडवर्स। अब ये एडवर्स क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका आउटपुट कितना है, आपको कितना आउटपुट बनाना था। सपोज मैं अगर आपको बोलती हूँ एक्चुअल आउटपुट कितना था, 32,500, बराबर, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स बच्चा, ओके। 32,500 अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट है, उसको बनाने के लिए लगने चाहिए थे कितने घंटे, 32,500 आवर्स में ये काम हो जाना चाहिए था, बट मैंने कितने घंटे लिए, 33,000 आवर्स लिए, मतलब 500 घंटा ज्यादा लिया, तो ये एडवर्स वेरिएंस है। ओके, अच्छा, जैसे मैं आपको बोलूं, आपका सपोज क्वेश्चन पेपर आपको 2 घंटे में करना है, ठीक है, कितने घंटे में, 2 घंटे में, लेकिन आपने वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के लिए लगाए 2.5 घंटे, तो आपका एफिशिएंसी फेवरेबल है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि आपको 2 घंटे में खत्म करना था, आपने 2.5 घंटे लगा लिए, आधा घंटा ज्यादा ले लिया, this way. Understood? Clear everyone? Okay, yeah. Then what will you do? Then you will verify your equations. What are you going to verify? Your 2 equations. Expenditure variance, volume variance should be equal to cost variance, and volume variance should be equal to calendar plus capacity plus idle time plus efficiency. Okay, your LHS should be equal to your RHS. In this case, obviously it has to be equal. मेरा expenditure variance है 5,000 A negative, 3,750 positive, तो टैली हो रहा है, 1250 से वो मैच कर रहा है। मेरा कैलेंडर वेरिएंस है 1800F प्लस 2700F, करेक्ट, फिर माइनस 750, तो 3750 which matches. Okay, so this completes my fixed overheads calculations. In the same sum, you are supposed to calculate your variable overheads also. Okay, so again you have to follow the steps what we did in material and labor.
स्टेप 1 यू हैव टू कंपेयर योर आउटपुट। तो इस सम में तो आउटपुट सेम नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट 30 है, एक्चुअल आउटपुट 32,500 है, तो दोनों अनइक्वल है। तो पहले तो मुझे उसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल हैव टू रिवाइज माय स्टैंडर्ड्स, बराबर, या। सो अभी देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट 30 है और आवर्स कितना है, 30 आवर्स है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट 60,000। तो 60,000 डिवाइड बाय 30 आवर्स करूंगी तो कितना हुआ, 2 रुपया 1 घंटे का। सी माय आंसर, 2 रुपया 1 घंटे का, ठीक है, या। अब मुझे इसको रिवाइज करना है, राइट, आई हैव टू रिवाइज माय स्टैंडर्ड्स, करेक्ट। तो 30,000 आउटपुट का 30,000 आवर्स, तो 32,500 आउटपुट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द सेम आंसर। सो 32,500, and since it's a short run concept, so my price will not change, standard rate will not change. 2 rupees, just a minute students, 32,500 into 2 rupees कितना हुआ, 65,000। okay, now actual hours कितना दिया है, 33,000, और actual variable cost कितना दिया है, 68,000। 68,000 divided by 33,000, so my answer is standard, I mean actual rate is rupees 2.060606. So it's recurring, so you also better keep it recurring like this, ठीक है, yeah. And then you apply your step 2. okay, first calculate variable cost, variable overheads cost variance, that is total standard cost minus total actual cost, same जो आप लोग मटेरियल और लेबर के लिए लिखते थे वही फंडा है। 65,000 minus 68,000, 3,000 एडवर्स। मटेरियल और लेबर के लिए तो आप लोग आंख बंद करके कैलसी में जो माइनस है तो ए लिखो, पॉजिटिव है तो एफ लिखो, करेक्ट, बिकॉज वहां आउटपुट के हिसाब से आप सोचते हो। तो सेम गोज फॉर वेरिएबल, ओके। मुझे कितना खर्चा आने वाला था, 65,000 होना चाहिए था मेरा वेरिएबल कॉस्ट, बट कितना हो गया, 68,000 हो गया। तो ऑब्वियसली इट्स अ एडवर्स वेरिएंस, ज्यादा खर्चा हो गया, बराबर, या। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट into actual hours. okay, so students take it like this, standard rate 2 rupees minus 2.0606, go up to 4 decimals and then multiply it with 33,000. ओके, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 2000 हो जाएगा, 2000 एडवर्स, ठीक है। देन गो फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, 32,500 minus 33,000 into average standard rate 65,000 divided by 32,500, सेम जैसे हम मटेरियल लेबर के लिए करते हैं, तो 1000 एडवर्स, ओके। I hope I'm clear with fixed and variable fundas. Okay. Till then, I come up with the next video. Happy learning.